Once Shakespeare said, I cried when I had no shoes, but I stopped crying when I saw a man without legs. Life is full of blessings. Sometimes we do not value it. If you cannot handle the stress, you cannot handle the success. It is not the stress that kills us, but it is our reaction to it. With this quote, I, Dr. Rumta Patharkar, welcome our guest motivational speaker, Mr. Bhushan Khairnar sir, and respected teachers and my dear students. The power of prayer cannot be explained, but power of prayer can be experienced. So let us begin our session with the remembrance of the God. I request prayer group to chant a prayer. Now I request our guest speaker, Mr. Bhushan Khairnar sir, to please come on the dais. And I also request Dr. Tapas Kundu sir to please come on the dais. Sir, please. Now I request Tapas Kundu sir to please felicitate Mr. Bhushan Khairnar sir with the shawl and slipper.
Mr. Bhushan Khairnar is one of the renowned motivational speaker whose objective is to motivate and to help people in order to achieve their life goals and solve their problems. Till now, he delivered more than hundreds of lectures in various faculties in the state of Maharashtra. So, without wasting much time, I request sir to please start with the session. Thank you so much, sir. Yes. So before starting anything, when I entered in this program, तो मैंने ये देखा कि आप में से ज़्यादातर लोग थोड़ा सा विदाउट इमोशंस बैठे हैं. यू नो विदाउट इमोशन. मैडम थोड़ा चेयर आप आगे कर लो और उसे भी लिख कर दो. मतलब मैंने जब देखा तो ठीक है मास्क है आप सभी लोगों ने पहना मुझे पता है, बट स्टिल आई कैन इजीली रिकॉग्नाइज आइदर यू आर स्माइलिंग और नॉट. So we are here to not only to just spend time, we are here to share some thoughts. We are here to learn something new. We are here to have something new journey of life. Because our today's topic is one of the most important topic for life. That topic is not only important for the student, but for every human being. That topic is very very important. And you all people know that the title of the topic is what? From student I need the answer. Do you know the topic? Yes or no? Yes. What is that, ma'am? Stress management. Very good. Ma'am has answered very correctly. मैम के लिए एक जबरदस्त applause होनी चाहिए. Come on, we all will clap for her. चलो तो वो क्या होता है, जब भी मैं जाता हूँ ना तो फर्स्टली मुझे 5-10 मिनट तो इन चीजों के लिए लग जाते हैं, क्योंकि whenever मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सब लोगों का चेहरा ऐसा एकदम अलग सा होता है. अब पीछे मैडम ऐसे बैठे कि जैसे आज उनके लाइफ का सबसे बुरा दिन है ऐसा. मैम इज इट लाइक? नो. व्हाट्स योर नेम? कृतिका. राइट. तो मैं सबसे सिंपल रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा, स्टाफ भी है स्टूडेंट भी है, देखो वी आर हियर फॉर फ्यू मिनट, और अगर हम अपना टाइम दे ही रहे तो हम एक बेस्ट वे से दे सकते हैं. एंड आई वांट बेसिक 3 रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड. आई विल बी डूइंग 3 रिक्वेस्ट एंड आई नीड योर कोऑपरेशन. द वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट इज दैट इफ यू आर सिटिंग हियर, ट्राई टू हैव अ प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस. कैन यू हैव इट? यस और नो? Because I am not a very professional lecturer and all, I am a motivational speaker. I deliver this type of program. I have delivered not only in Maharashtra, I have delivered it all over the India. Myself Bhushan Khairnar. If you want, you can search on Google, YouTube, everywhere. You will get my presence over there. Since 2011, I am delivering all the programs on motivation, training, and soft skills. And basically, it is very very proud thing for me that I belong to Nashik city only. The good news for that is, last time when I came to this college, from that moment I got so many opportunity, I shifted to Pune. But today's topic is one of the most important topic for me, because nowadays what scenario is getting generated due to stress that you all know. Yes or no? My first request is, आपके सभी लोगों के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए. भले आपने मास्क पहना है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि आप स्माइल कर रहे हो या नहीं है, क्योंकि मास्क के पीछे से भी मैं बता सकता हूँ. अब मैडम अगर चीट करने की कोशिश करेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा. देखो, क्योंकि भगवान ने हंसने की अदा सिर्फ इंसानों को दिया है. यस और नो? मास्क की वजह से आंसर भी आ सकता है. यस और नो? मैम डू वी हैव एनी रूल लाइक कि सर वी हैव एनी रूल कि ये मुझे जवाब नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है? नहीं ना? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? यस. तो मुझे आपका फर्स्ट पॉइंट एक स्माइल है. सेकंड पॉइंट ये कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको पूछूंगा उनका आपको आंसर देना है. और गुड न्यूज इज दैट कि क्वेश्चन मेरा आईआईटी लेवल का नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा. उसका आंसर या तो यस रहेगा या तो नहीं. सुना? यस या तो तो मुझे सबसे सुनना है, इवन इफ फ्रॉम स्टाफ आल्सो. यू नो कि एक इंसान की जो भी एज होती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि बाय नंबर वो कितने साल के नहीं पता, लेकिन बाय एक्साइटमेंट दे आर वेरी वेरी यंगर. आई एम राइट? यस और नो? यस और नो? तो क्या आप मेरी रिक्वेस्ट फॉलो करने के लिए तैयार हो? यस और नो? जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी तब तक मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा. वेरी गुड. सर के लिए एक जबरदस्त एप्लॉज हो जाए. कम ऑन. थोड़ा. यस सर. वेरी गुड सर. सर बाय एक्साइटमेंट इज ऑफ 25 ओनली. सब लोग मिलके एक जोर से एप्लॉज सर के लिए देखो, कभी भी याद रखना, प्रोग्राम में कितने लोग प्रेजेंट है बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि कई प्रोग्राम ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हजारों लोग हैं, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है. उस क्वांटिटी का मतलब ही क्या है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है. am I right? yes or no? लेकिन कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पे सिर्फ 20 लोग बैठे रहते हैं, 30 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी, उस प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन और उस प्रोग्राम का बेनिफिट इतना होता है कि आने वाले वक्त के अंदर 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनका फायदा होता है. Are you getting my point? Yes or no? So keep smile on your face. First thing. Second thing, जो भी पूछूंगा उनका आंसर सभी लोगों को देना है.
आप लोगों को सपोर्ट मिल गया मास्क का, लेकिन फिर भी आपको इसका फायदा ज्यादा नहीं लेना है। अब देखो मैम ने स्माइल किया, तो मतलब ऐसा ही होता है जब जोक मारते तब स्माइल करते। तो मैं चाहता हूं क्योंकि देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर देते वक्त अगर हम सब स्ट्रेस में दिखेंगे तो लेक्चर का मतलब ही क्या होगा? The first medicine for that is what? You should keep on smiling. Am I right? Yes or no? Yes. आपका रीजन कुछ भी क्यों ना हो, I have some physical problem you might have observed. Yes or no? Yes. देखा होगा आपने, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको मेरे स्माइल के अंदर कुछ कमी नजर आ रही? Yes or no? Yes or no? अभी नो बोल रहे तो वो भी बड़े आवाज से बोलना पड़ेगा। Yes or no? सिंपल। तो ये पहली रिक्वेस्ट थी, सेकंड हो गई। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, वी कैन प्रेजेंट एट एनी प्रोग्राम बाय टू वेज। पहला वे जो होता है वो है फिजिकली, वी कैन बी देयर जस्ट बाय बॉडी। Am I right? Yes or no? Yes. And second type is that you can be there by mentally also. तो आज मैं जानता हूं फिजिकली तो सब लोग आ ही चुके हो, आज आ गए? यस और नो? आए नहीं था मैडम? नक्की। तो मैं चाहता हूं कि मेंटली भी आपको यहाँ पे रहना है, क्योंकि मैं मेरे हर प्रोग्राम में एक हमेशा चैलेंज करता हूं। साइकोलॉजी के फादर रह चुके हैं मार्क ट्वेन, अमेरिका से है, वो हमेशा कहते हैं कि इंसान के लाइफ में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला दिन वो जो जिस दिन वो इस धरती के ऊपर जन्म लेता है, और दूसरा वो दिन जब उन्हें ये पता चलता है कि मैंने धरती के ऊपर जन्म क्यों लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस, वी ऑल नो आवर बर्थ डेट। यस और नो? हमारी बर्थ डेट हम जानते ही, लेकिन दूसरी डेट हमें नहीं पता है कि जिस दिन हमें ये रियलाइज होता है कि व्हाई आई हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ। यस और नो? समझ रहे? मेरी इंग्लिश ओके ओके? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? थैंक यू सो मच। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरे हर प्रोग्राम के अंदर जो भी कंटेंट में डिलीवर करता हूं, जो भी टॉपिक में लेता हूं, वो टॉपिक इस टाइप के रहते हैं कि आपके लाइफ का वो सेकंड इंपॉर्टेंट जो डे है वो आज का होने वाला है। अगर आप चाहोगे तो मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, कितने लोगों के साथ में आप बैठे हो। मेरे हिसाब से जब एक हॉल के अंदर हजारों लोग रहते हैं, आई हैव डिलीवर सेशन इन सो मेनी प्रोग्राम जहां पे 100 लोग थे, 500 लोग थे, 1000 थे। इवन इफ जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पे 35,000 से भी ज्यादा की कैपेसिटी है, वहां पे भी स्टेज के ऊपर से मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे प्रोग्राम के अंदर भी अगर मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन वहां पे भी मैं एक चीज कहता हूं, मैडम मैं हमेशा वहां पे क्वेश्चन सब लोगों को पूछता हूं कि इस हॉल में कितने लोग हैं, तो दे गिव यू अप्रोक्सीमेट आंसर। अभी भी पूछूंगा, आप बोलोगे 50 है, 60 है, 40। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम का आपको बेनिफिट हो, तो यू हैव टू कंसीडर लाइक दैट इन दिस एंटायर ऑडिटोरियम ओनली यू आर सिटिंग हियर। आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? यस और नो? आप अकेले बैठे और आपके साथ में मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि जब आप इस माइंड से इस प्रोग्राम को अटेंड करोगे, द लेवल ऑफ कनेक्शन विल बी द बेटर वन। एम आई राइट? यस और नो? यस, द लेवल ऑफ बेनिफिट विल बी आल्सो बेटर, क्योंकि जहां पे हम कनेक्ट ज्यादा होते हैं वहां पे हमें फील ज्यादा होता है, फील ज्यादा होता है वहां पे हमें हमारे सारे दिमागों के सवालों के आंसर मिलते हैं। एम आई राइट दैट वे? यस और नो? एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, क्योंकि आज मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट ही नहीं, इवन इन ओवरऑल मेरे लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने की है, जो आपको अगर पता ना हो तो वो सारी चीजें मैं छोटी सी शेयर करने वाला आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर। आप में से कितने लोग हैं स्टाफ को छोड़ के, जितने भी स्टूडेंट्स में हैं, कि जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सुना है? आप में से कोई जो नीचे बैठे आपने सुना है? नहीं, वेरी गुड। लास्ट टाइम आई केम हियर सो ऑलमोस्ट 600 जो भी हमारी कैपेसिटी है पूरा पैक था, तो मुझे लगा वहां में से उसमें से कुछ स्टूडेंट आएंगे। सर आप भी थे शायद ना? यस, यू ओनली फेलिसिटेड मी। सर के लिए एक जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए, जबरदस्त अप्लॉज। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट टाइम भी सर की एनर्जी और हैप्पीनेस इतना ही था, और इस बार भी सर की एनर्जी और हैप्पीनेस इतनी है, और यही सीक्रेट है सर ने बोला ना कि सर ऐसे कितने पता नहीं, लेकिन मुझे तो 25 के लगते हैं। एक बार फिर से सर के लिए अप्लॉज होनी चाहिए, कम ऑन, दिल से। मैडम अप्लॉज जैसे बजा रहे हैं जैसे कि उसके अंदर मच्छर भी आता है तो भी मरेगा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैज अ क्लैपोमीटर। जितनी भी क्लैप आप किसी और के लिए करोगे, आने वाले समय में आपको रिटर्न मिलने वाले। और हर इंसान चाहता है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो कि आई शुड गेट एवरीथिंग इन रिटर्न। यस और नो? नहीं सुना? यस और नो? थोड़ा सा मेरे बारे में बताता, स्टूडेंट न्यू है, स्टाफ में से भी कुछ लोग अगर लास्ट प्रोग्राम में नहीं थे, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट मी। माई सेल्फ भूषण केनार, आई वर्क एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आफ्टर दैट कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मोटिवेशनल स्पीकर मीन्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आई एम गेटिंग इन्वाइटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इन्वाइटर्स, ऑर्गेनाइजर, क्योंकि बाय इन्वाइटिंग मी जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है मोटिवेशन इंडस्ट्री में पिछले 10 साल का, तो जो भी टॉक में डिलीवर करता हूं, उस टॉक के बेनिफिट से जो भी गैदरिंग वहां पे रहती है, जितने भी लोग वहां पे बैठते रहते हैं, उनके लाइफ में एक न्यू जर्नी का स्टार्ट हो सकता है। फॉर दैट पर्पस दे इनवाइट मी एज अ स्पीकर।
And along with that, what do I mean by trainer? So I get invited by all the company, all the private sector, where for development of staff they invite me because I have done my graduation, special graduation in human resource only, because that is my deep study. Even if till now I have read more than 40 books which are related to the self-help and psychology and success only. बुक मतलब वो नहीं चेतन भगत थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, यार गेटिंग माय पॉइंट. बुक मतलब वो बुक जो मुझे एक्चुअली बेनिफिट करने वाला, और इसके वजह से आज बताते हैं बहुत अच्छा लगता है. आज अगर महाराष्ट्र में अगर आप डालते हो टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र, तो सेकंड रैंक पे आपको भूषण कहनार का नाम मिलेगा. अच्छा लगा या नहीं लगा? लगा? क्लॅप हो सकती है यस और नो? काय आपल्या जगात असं तेलुगू चालू काय सुद्धा मागून घ्यावं लागतं असं म्हणतात, लेकिन जरूरी है, क्योंकि क्या है जो आप डिजर्व करते वो है. कॉर्पोरेट ट्रेनर मैंने बता दिया. व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कोच? कोच इज अ पर्सन. बास्केटबॉल कोच बास्केटबॉल सिखाता है, क्रिकेट कोच क्रिकेट सिखाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन कोच क्या सिखाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन. आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ मेनी टाइम. मेरी स्टोरी में जब आपसे शेयर करूंगा तो उस स्टोरी से भी आपको कुछ चीजें पता चलेगी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मेरे अंदर किया है. तो कुछ टेक्निक्स, कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने अप्लाई की कि जिसके वजह से मेरे लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बावजूद भी मैंने एक बहुत बड़ा रेजिलियंस का एग्जांपल दिया. यू नो द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस? यस और नो? फास्ट रिकवरी. किसी बड़े बैड इंपैक्ट के बाद जब आप रिकवर होते हो, अगर वो जल्दी रिकवर होते तो उसे रेजिलियंस कहा जाता है. am I right that way? yes or no? नहीं सुना? यस और नो? तो आज हम जितनी भी बातें करेंगे ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है अगर आप उससे अपने आप को कनेक्ट करो तो. और थोड़ा मेरी स्टोरी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो आई डिड माय ग्रेजुएशन इन नासिक ओनली, बट बिफोर माय ग्रेजुएशन आई वाज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंडस्ट्री. मैं पहले ही ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पार्ट था, और मेरी 12th होने के बाद ही मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था. तो उसके वजह से वहां पे जितने भी लोग थे उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि कम एज में मैंने जो कुछ भी वहां पे कवर किया. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड मी टू अपॉइंट एज अ ट्रेनर. और एक ऐसा बच्चा था जिसकी उम्र थी मैडम 18.5 साल, और वो ट्रेनिंग देता था उन लोगों को जिनकी उम्र थी 25, 30, 35 और 45 साल के लोगों को भी ट्रेनिंग में दे रहा था. दैट इज ऑल्सो इन अ वेरी लेस एज. आप अगर गूगल पे जाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. तो आज अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में स्ट्रेस मैनेजमेंट से पहले मैं मेरा एक बेसिक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं एज ऑलरेडी ट्रेनर वर्क कर रहा था 2012 की अगर बात करूं तो तब मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के अंदर मैं पुणे से मनमाड़ बाय ट्रेन जा रहा था, और ट्रेन से जाते वक्त चलती हुई ट्रेन से मैं नीचे गिर गया था और मेरी राइट लेग के ऊपर से पूरी ट्रेन चली गई. तो मेरा एम्पुटेशन हुआ और 80% फिजिकली चैलेंज वहां पे हैंडीकैप मुझे होना पड़ा. और उस वक्त मेरे लाइफ में ऐसी कई सारी सिचुएशन, ऐसे कई सारे मूवमेंट या फिर एक ऐसा फेज था जिसके वजह से मेरे दिमाग में क्या आया था? स्ट्रेस आया था. द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. It was possible for me to hide this story and to explain this story in the end, but today our main importance is to the stress management. Am I getting my point? Yes or no? Are you getting it? Yes or no? तो वो स्ट्रेस मेरे लाइफ में कितना होगा ये आप इमेजिन कर सकते हो. What is the problem, मैम? जितने भी लोगों को स्ट्रेस रहता है तो उसका जो रीजन है वो रीजन मैं कहता हूं चींटी से भी छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं. आप कुछ मत करो, यू जस्ट ट्राई टू कीप योरसेल्फ एट माय पोजीशन. आप कोशिश करो आपको मेरी जगह पे रखने का. एक बच्चा जो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था उस वक्त, और उसके साथ लाइफ में अगर एकदम से ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसके वजह से उसकी लाइफ की 80% जो मूवमेंट रहती है वो रिस्ट्रिक्ट होने वाली है, जिसकी वजह से वो चैलेंज रहेगा, उसके लाइफ में प्रॉब्लम कितने रहेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? दिस इज माय प्रोस्थेटिक लेग. यू नो प्रोस्थेटिक, नकली पैर जिसे हम कहते हैं. तो आज उसके साथ में भले मैं आपके सामने खड़ा हो पा रहा हूं, बट स्टिल आई हैव सो मेनी लिमिटेशंस. एंड टुडेस टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज हमारे माइंड में स्ट्रेस के जितने भी अलग अलग रीजन है तो उन रीजन को छोटा कहना या बड़ा कहना ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है. यस और नो? क्योंकि ऐसे भी लोग जिनके लाइफ में बहुत बड़े हादसे होते हैं बट उसके बावजूद भी उनको स्ट्रेस फील नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे जिनके लाइफ में छोटा सा हादसा हो जाता है तो भी उनको स्ट्रेस फील होता है. Am I right? Yes or no? उस हिसाब से आप अपने आप को मेरी जगह पे रख सकते हो. बिकॉज जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऑलमोस्ट 10-15 टुकड़े ट्रेन के नीचे पैर आने की वजह से एम्पुटेशन हुआ. मोर देन 20 बॉटल्स ब्लड मुझे दिया गया, ब्लीडिंग ज्यादा हुआ था इसलिए. और उस वक्त मोर देन 50 स्टिचेस लगे थे एम्पुटेशन के वक्त. 50 स्टिचेस आई एम टेलिंग यू. और उस वक्त डेली मेरा ड्रेसिंग होता था. यू नो कि जो ड्रेसिंग करनी है विदाउट एनेस्थेसिया दे रहे थे तो मुझे कितना पेन हो. इवन मैं कहता हूं कि जब ट्रेन के नीचे मेरा पैर आया था उस वक्त उतना दर्द नहीं हुआ था जितना मुझे ड्रेसिंग में होता था. And that can be a reason of my stress. Even if how my future life
कैन बी, ऐसा अगर मैं सोचूंगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। Am I right? Yes or no? क्योंकि मेरी उम्र थी सिर्फ 18.5 साल जब मेरे साथ यह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आज वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा सोर्स कि जिस सोर्स की वजह से फिजिकली या मेंटली आपके बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, उसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं। अब मेरे लिए सोर्स था मेरा एक्सीडेंट। Am I right? Yes or no? किसी के लिए सोर्स हो सकता है एग्जाम। Am I right? Yes or no? किसी के लिए सोर्स होता है कि फैमिली प्रॉब्लम। Yes or no? कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस सोर्स के बाद में हमारे ब्रेन में मेंटल लेवल पे एक एंजाइटी वाली फीलिंग आती है। Am I right? Yes or no? हमारे जो कहते हैं कि ब्रीथिंग रेट जो बोलते हैं, पल्स रेट कह सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं। Yes or no? उस वक्त हमें ऐसा इतना टेंस फील होता है कि हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। Yes or no? ऐसे अलग अलग रीजन की वजह से जब हमें डिफरेंट फील होता है, यू कैन कॉल इट एज अ स्ट्रेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जब मैंने थोड़ा सा पास्ट में देखा स्ट्रेस ये कंसेप्ट कहां से आई, मराठीत बोलतो दुसरं महायुद्ध माहित असेल, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस वक्त जितना भी लॉस हुआ था तब जाके स्ट्रेस ये कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ। वैसे अगर आप देखोगे तो उससे पहले स्ट्रेस किसी को पता भी नहीं था, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। यस और नो? वैसे अगर देखा जाए तो इंसान को तो हर कदम पे स्ट्रेस आ सकता है। मैं अच्छा चढ़ नहीं पाया, स्ट्रेस। मेरी ये यहाँ पे वायर कनेक्ट नहीं हो रही थी, स्ट्रेस। यस और नो? आई वाज टेकिंग टू मच टाइम, स्ट्रेस। मैं बहुत बात करते करते बीच में अटक गया, स्ट्रेस। इंग्लिश अच्छी नहीं आ रही है, स्ट्रेस। हो सकता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं आपसे अगर ऑनेस्टली बात करूं तो ऐसे हजारों नहीं लाखों रीजन है कि जो आपको एक स्ट्रेस की तरफ धकेल सकते हैं। तो स्ट्रेस होता क्यों है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई भी घटना आपके लाइफ में जो अनयूजुअल होती है, जिस घटना के वजह से फिजिकल या मेंटल लेवल पे आपको डिफरेंस लगता है, दैट आई विल बी कॉलिंग दैट एज अ स्ट्रेस। आप भावनाओं को समझिए। यस और नो? आई डिड माय एंटायर स्कूलिंग इन मराठी मीडियम ओनली, नॉट सेमी, नॉट सीबीएसई, नॉट आईसीएसई। how difficult it was for me to speak in English, that I know only, but I deliver all my session in Hindi only। but अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करके अपने आप को कवर अप कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रही है मुझे। यस और नो? यस और नो? अप्लॉज हो सकती है मेरे लिए। यस और नो? थैंक यू। अप्लॉज सर इसलिए हम मांग लेते हैं क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बढ़ जाता है, जो भी है सो। तो अभी स्ट्रेस की बात करते हैं। इफ यू हैव डायरी एंड पेन टू राइट तो आप निकाल सकते हो क्योंकि दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। डू यू नो इन स्ट्रेस रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेटेड टू डिप्रेशन, coaches charge lakhs of rupees. Even if I told you about my transformation coaching, I was telling to Ruta ma'am in cabin only, I did my coaching certification from such a person जिन्होंने ऋतिक रोशन को उनके डिप्रेशन के वक्त कोच किया। यानी अगर आपको ना पता हो तो ऋतिक रोशन सर भी उनके लाइफ में कभी कभार डीप स्ट्रेस या डिप्रेशन में थे। इवन प्रियंका चोपड़ा वाज आल्सो थे। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इतने बड़े सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने आप को, आपको पता है मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कहां से वो लेके गए, उसके बावजूद भी अगर वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो कहने का मतलब अगर हमने सारे पॉइंट अगर क्लियर आउट नहीं किए तो शायद हमारे लाइफ में भी बड़ा पाप बन सकता है। क्योंकि आप में से कुछ लोग कहेंगे मुझे तो स्ट्रेस आता नहीं, सही बात है, क्योंकि मैं कहूंगा कि आप अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही टफ हो, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। बट जो लोग कहते हैं मुझे नहीं आता है, उनके भी बॉडी को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता ही है। शायद उसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस कुछ मिनट के लिए सही, कुछ घंटों के लिए सही, कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और जो डिसीजन मेकिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो वहां पे कम हो जाता है। अबाउट दोज पीपल लाइक मी आई वुड से कि जो कहते हैं कि मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही बार स्ट्रेस आया था, भगवान ने इतना बड़ा स्ट्रेस दे दिया कि अभी कोई भी स्ट्रेस मुझे छोटा ही लगता है। तो कहने का मतलब व्हाट इज स्ट्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं कहूंगा कि स्ट्रेस के वक्त जो आपको करना है कि वो है उस स्ट्रेस का सोर्स, किस चीज की वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैंने बताया आजकल की अगर बात करूं तो आई शुड नॉट मेंशन इट हियर, बट आई थिंक इट इज एसेंशियल टू मेंशन कि अभी जो सुसाइड रेट है वो दिन ब दिन कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नथिंग, स्मॉल फुली छोटी छोटी जो रीजन होते हैं उन रीजन को लेकर स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन लीड टू व्हाट दैट यू ऑलरेडी नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? You have to keep on responding me। आप नए जो आए हो आपको भी आंसर देना है यस और नो। मेरा क्वेश्चन आईआईटी का नहीं होगा, सिंपल होगा यस और नो में। आप आंसर दोगे यस और नो? यस। चलो, मुझे लगा वो भी यस नहीं बोलते ऐसा। ये मेरा पॉइंट। तो आज ये हमें समझना है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस होता है, तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से पहला एक रीजन हम देखेंगे कि आपको स्ट्रेस फील क्यों होता है। स्ट्रेस हमेशा 5-6 अलग अलग रीजन होते हैं, उनकी वजह से होता है। लिखो, आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। दैट पॉइंट इज योर माइंडसेट। आई वुड से आपकी मानसिकता, योर मेंटालिटी,
इवन इफ आई वुड से योर परसेप्शन, यू नो परसेप्शन, आप लिखते लिखते सुन सकते हो, मेरी तरफ देख भी सकते हो. इफ यू हैव समथिंग टू राइट, लिखो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं. विल बी गेटिंग आई थिंक दिस वीडियो फुटेज ऑन साइड आल्सो. ओके, यू आर हियर? यस. क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है कि इंसिडेंट सेम है, लेकिन इंसिडेंट सेम होने के बावजूद भी उसका जो इफेक्ट है वो एज पर द पर्सन डिफर होता है. ऐसा होता है, यस और नो? यस, होता है. सेम इंसिडेंट, मेनी पीपल आर लाइक कि दे गॉट सच अ एक्सीडेंट कि जिसमें इतना बड़ा उनको डिसेबिलिटी या डैमेज नहीं हुआ, बट स्टिल दे आर मेंटली सो मच स्ट्रेस्ड. एंड फ्यू पीपल आर लाइक मे बी लाइक मी और मोर देन मी. कुछ लोग ऐसे भी एक्सीडेंट, उनको दोनों पैर को खोना पड़ा, दोनों हाथों को खोना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद दे आर वेरी स्ट्रांग. हिंदी में कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी पचा. यस और नो? यस. तो अभी माइंडसेट ये टॉपिक में क्यों डिस्कस कर रहा हूं? अगर आप अपने लाइफ में हमेशा के लिए स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हो, उसके लिए सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है या फिर स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है माइंडसेट. दैट कैन बी अ पॉजिटिव माइंडसेट. अगर एक अच्छा माइंडसेट है तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका वीक माइंडसेट है तो छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस आपको आ सकता है. एम आई राइट? यस और नो? नहीं सुना? यस और नो? सिंपल. क्योंकि अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो आज मैं आपसे कुछ रेयर थिंग शेयर करने वाला हूं जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में नहीं की थी. लास्ट प्रोग्राम आई गिव द केस स्टडी ऑफ मी, आई थिंक कल्पना सरोज मैम, और कुछ नॉर्मल चीजें जो मोटिवेशन रिलेटेड थी. बट टुडे वी विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट स्ट्रेस ओनली. एंड व्हाटएवर टॉपिक्स आई हैव इन माय लाइफ, इवन इफ व्हाटएवर आई हैव स्टडीड वेरी रेयरली, वो सारी चीजें मैं आपसे शेअर करने वाला हूं. उसमें से एक चीज जो है, जैसे मैंने आपको सायकोलॉजी की बात की, जे मानसशास्त्राचे अमेरिकेमधले जनक आहे त्यांनी अल्टिमेटली ह्यूमन, मानवी जन्माचा पर्पज, मराठी बोलो सॉरी, एक इंसान का जो जन्म होता है उसके पीछे का जो अल्टीमेट पर्पज आइडियली जो होना चाहिए वो पर्पज उन्होंने शेयर किया. लेकिन मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन बर्थ, ह्यूमन लाइफ? आप में से कोई शेयर करना चाहिए? काय वाटतं तुम्हाला, तुमच्या शब्दात आपको क्या लगता है आपके बातों में, व्हाट कैन बी द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ? अब आप बोलोगे सर कहेंगे कि पर्पज अलवेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर इंसान के हिसाब से किसी के लिए पर्पज ये भी हो सकता है क्या कि मेरे लिए एक अच्छी डिग्री लेना पर्पज है, या फिर फाइनेंशियली घर वालों को सपोर्ट करना पर्पज है, या फिर अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में कुछ ड्रीम्स है उनको अचीव करना पर्पज हो सकता है. एम आई राइट? यस और नो? मैडम पीपीटी नसेल तरी चालेल काय? ओके ओके, होत असेल तर बघा, नाही तर काय. ठीक, ओके, आप समझ गए मुझे क्या कहना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो मैंने थोड़ा डीप स्टडी करने के बाद जो मुझे मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ. मैडम राहुल जल्दी वीडियो कंटिन्यू करें. पर्पज ऑफ लाइफ उन्होंने शेयर ये किया है. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, एक थोड़ा सा फनी एक्टिविटी में बताऊंगा और ट्राई टू रिलेट माय मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ. कभी भी जो बॉलीवुड की हीरोइन है उनका एक पिक्चर लीजिए आप साथ में, ओके, और जो फीमेल मंकी उनका पिक्चर लीजिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो हमारा जो रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दैट इज फ्रॉम द मंकी स्पीशीज. एम आई राइट? यस और नो? यस. तो जब इसको डीप लेवल पे सर्च किया गया तो ये पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज है. एम आई राइट? यस और नो? बहुत बड़ी चीज है. यस और नो? तो बायोलॉजिकल लेवल पे जो न्यूक्लियस होता है, जो जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, उनके अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है कि जिसके बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. यस और नो? तो उन्होंने साइकोलॉजी के जो फादर रह चुके हैं उन्होंने ये कहा, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी फाइंडिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यूटिलाइजिंग योर बेस्ट टैलेंट, योर बेस्ट पोटेंशियल. आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके अंदर एज अ कैपेसिटी कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है, उसको ढूंढना ही आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है. क्योंकि मैं पैसों से अगर जोड़ता हूं तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है फिर भी स्ट्रेस में. यस और नो? अगर मैं इसको अगर ड्रीम से बात करता हूं, कई लोग इन्होंने बहुत सारे सपने पूरे किए लेकिन एंड फिर भी उनका खराब हुआ है. यस और नो? लेकिन उन्होंने ये बताया कि त्याच्यात भी सर व्हाट इज सक्सेस, उन्होंने जो आंसर दिया मैं आज भी उस आंसर को फील करता हूं. आप मुझे बताओ, जिस भी लेवल पे आप हो लाइफ में, योर एज अ स्टूडेंट, तो अगर आपके पिछले साल का अगर मैं एग्जाम का स्कोर देखता हूं तो वो शायद ए ग्रेड होगा. और अगर आप ये कोशिश करते हो कि मुझे ए प्लस लाना या फिर बी ग्रेड होगा
और अगर आप ये कोशिश करते हो कि मुझे ए लाना है, तो यू टेल मी वन थिंग, जो भी प्रिपरेशन, जो भी एफर्ट्स हम लास्ट टाइम दे रहे थे, क्या हमें उतने ही देने पड़ेंगे या ज्यादा देने पड़ेंगे? कॉमन सेंस, एकदम छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादा देने पड़ेंगे मतलब क्या? मैडम आपका नाम क्या है? यस, यू ओनली, अभी आपने हाँ यस, निमिका, हेमिका, ओके हेमिका जी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट साल में जो भी आपका स्कोर था, अब आप चाहते हो कि आपको इस साल बढ़ाना है, चाहते हो ना? नहीं तो आप ही कहते हो मैं ही नहीं चाहते, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो, और उसके साथ में क्या लगता है आपको, आप जैसे थे आपको वैसे ही लेके चलेगा या आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? और मेहनत करनी। देखो मेहनत मतलब ये ऐसे बड़े बड़े वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो वो मेहनत किस किराना दुकान में मिलती है वही नहीं समझता। लेकिन प्रैक्टिकली बात करेंगे तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? यस, क्योंकि मेहनत की बात करूं तो हार्डवर्क मतलब आपको पत्थर फोड़ने क्या नहीं, सिंपल आपको खुद को चेंज करना है। और आप मुझे बताओ, खुद को चेंज करना बहुत ईजी है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। उन्होंने जब बोला कि जब आप अपने आप को चेंज करते हो, आप अपने आप को चेंज करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन खुद के लेवल पे करना होता है। और जैसे कि पहले हेमिका मैडम जो है, शायद वो सुबह कितने बजे उठते थे, अभी उनको ए ग्रेड चाहिए तो अपना टाइम चेंज कर देंगे। यस और नो? शायद उनकी पहली, देखो कितना अच्छा स्माइल कर रहे हो, क्योंकि सुबह उठने का कोई ना कोई तो रिलेशन हो गई, सभी लोग ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। शायद सेकंड मैम कहेंगे कि पहले मेरा स्टडी का जो स्टडी आवर्स थे पर डे में, जब अगर मैं एक बार पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो पहले 5 घंटे पढ़ती थी, अभी मुझे बढ़ा के उसको 8 घंटे करना पड़ेगा। शायद मुझे अपनी मेमोरी को बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? और जब मैडम चेंज करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सर फाइनली द डे व्हेन शी विल अचीव दैट थिंग, दैट विल बी सक्सेस। यस और नो? दिस इज योर आंसर, बट योर आंसर इज रॉन्ग। दैट विल नॉट बी सक्सेस। जब वो बदलेंगे ना, तो बदलने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि आई वाज सच अ हिमिका एंड टुडे आई एम दिस टाइप ऑफ हिमिका, दैट विल बी एक्चुअली सक्सेस एंड दैट शुड बी एक्चुअल पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप समझे मुझे क्या कहना है? जिन लोगों ने अचीव किया होता है ना, सर आज इतने साथ में इतने सालों से एक अच्छे लेवल पे, जब सर जिस भी दिन अगर बैठ के अगर पास्ट इमेजिन करें ना, तो उनको इतने फनी मूवमेंट या फिर इतने जो भी सर ने डिवोट किया है, जो भी कहते हैं ना कन्विक्शन होता है, तो वो सारी चीजें उनको याद आती है। Am I right? Yes or no? Now I will relate the topic with stress. How? I will tell you. अगर लाइफ का पर्पस अपने आप को सारी चीजों में अपग्रेड करना हो, तो इंसान अपने लाइफ के हर फील्ड को इस एंगल से देखेगा कि जहां पे मुझे अपग्रेडेशन का स्कोप है। Am I right? Yes or no? पहले अगर मैं जल्दी टेम्परामेंट मेरे अंदर था, हाई टेम्परामेंट है, यू नो टेम्परामेंट, कुछ मेरे साथ होता है तो मैं ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। लेकिन अगर मेरे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस यही है कि अपने आप को सारे फील्ड में क्या करना है, अपग्रेड करना है। क्या करना है? नहीं सुना, क्या करना है? नहीं सुना, क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो उसके लिए मैडम ये सोचेंगे, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अभी मुझे अपने आप को इस टाइप से बनाना है कि मुझे गुस्सा आना नहीं चाहिए। Then she will try to prepare in the same way. Yes or no? She will try to ask such a people कि जो इसके ऊपर सॉल्यूशन देते हैं। Yes or no? Yes. तो अगर एक इंसान का माइंडसेट सही हो, तो उसके साथ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, उसके लिए वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है? छोटी होने वाली है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बंदा जो था जिसकी उम्र सिर्फ 17.5 साल थी, 17.5 साल के एज के अंदर पुणे के अंदर ही गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर वहां पे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है बाय डूइंग सम प्रैक्टिकल बिजनेस एक्टिविटी। 17.5 साल, 12वीं मुलगा, 12th स्टैंडर्ड। लेकिन जब उसे वो एक्टिविटी मिलती है तो उसका पर्पस ये था, आई विल बी डेवलपिंग माई सेल्फ ऑन अ सॉफ्ट स्किल लेवल, ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेवल, जिसके वजह से मैं मेरे फ्यूचर के अंदर ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट रहूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो बंदे को 12th में मिल रहा है। 12th स्टैंडर्ड में बच्चे क्या करते हैं? 12th के हॉलीडेज में वो बुआ के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, इधर उधर समर कैंप करते हैं, जो भी है। But he decided to be a part of such a fraternity where he will be developing himself. और वहां पे हर थर्सडे वो ट्रेनिंग के लिए जाता है, प्रैक्टिस के लिए जाता है। संडे को स्टेज के ऊपर उसे चांस मिलता है। पहली बार वो स्टेज पे बात करता है, उसके पैर से कप कप आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाती है। और जिस बंदे के दिमाग में ऐसा क्लियर है कि हर संडे उसे ये पता चलता है कि इंसान के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी तो उसकी सोच है। Am I right? Yes or no? चांद के ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचा बताओ? रॉन्ग आंसर। चांद के ऊपर सबसे पहले उसकी सोच गई। Am I right? Yes or no? विचारच नाही केला तुम्ही कसं काय जाणार तिकडे? इस सवाल के अंदर सबसे पहले कौन आया? मैडम मैडम मैडम, नो वन। पहले आपका थॉट आया। मैं तो कहता हूं पहले रीता मैडम का थॉट आया कि लेक्चर होने वाला है शायद। गेटिंग माय पॉइंट? इफ शी इज द मेन ऑर्गेनाइजर। तो कोई भी चीज पहले ख्यालातों में होती है, फिर वो प्रैक्टिकल रियलिटी में होती है। यस और नो?
पे अटेंशन, यस और नो? तो वो बंदा जो 12th में था वो ऐसे एटमॉस्फेयर में था और उसको कंटिन्यूअसली ये चीज दिया जा रहा था, और फिर उसके साथ में वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर का पार्ट बनता है जो लोगों को कहता है प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन बड़ी बात है, यस और नो? आपके पास क्या नहीं वो मत देखो, आपको क्या मिल सकता है आप देखो, यस और नो? और उसी बच्चे के साथ 18.5 के एज में एक्सीडेंट होता है, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो अगर एक्सीडेंट के 1 साल पहले अगर मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता तो दिस कुड हैव बीन, कहते हैं ना कि एक बहुत डिफरेंट मेरे लिए बैड डैमेज हो सकता था। तो आज मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर यही बात कर रहा हूं कि जिन लोगों का माइंडसेट गलत है उनको ज्यादा जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, और जिन लोगों का माइंडसेट सही है उनके लाइफ में कुछ भी होने दो, इन स्पाइट ऑफ दैट फिर भी उनको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू टू वर्क ऑन योर माइंडसेट ओनली। यस यस, दे विल कॉपी कर। यस सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज हो लीजिए, सर ने एकदम सही बताया। यू विल सर, लास्ट टाइम आई टोल्ड अ स्टोरी और अ फैक्ट एक्चुअली। एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, इस बार फिर से पूछूंगा कि अगर आपको 3 दिन खाना नहीं मिला हेमिका जी, तो 3 दिन के बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी आप बताओ? डल, पूरा बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहेगी। तो सिमिलरली वी हैव दिस साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस, ब्रेन सिस्टम, उसको भी अगर आपको डेवलप करना है तो उसको भी खाना देना पड़ेगा। आप जो खा रहे हो वो इनफ नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट, मेंटालिटी, एंड हाउ यू कैन वर्क बाय रीडिंग सम एक्स्ट्रा सेल्फ ओरिएंटेड थिंग, बाय टेकिंग सम सेल्फ ओरिएंटेड टारगेट। मेरा बाय बर्थ अगर नेचर की बात करूं तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, और मेरा जो प्रेजेंट नेचर है वो कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन माय ओन नेचर आल्सो। और अगर किसी का माइंडसेट ऐसा है तो अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो यू टेल मी वन थिंग, वो प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम लेगा या प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लेगा? आंसर मी, एज अ प्रॉब्लम और चैलेंज? चैलेंज। और वो तो उस चीज को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी समझेगा कि ये मेरे लिए अपने आप को अपस्किल करने की अपॉर्चुनिटी है। am I right, yes or no? yes। एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक बार क्या होता है, कॉलोनी के अंदर एक गुब्बारे वाला आता है, यू नो बलून, यस, हिंदी समझती है ना सबको। एक गुब्बारे वाला आता है, और गुब्बारे वाला आता है, एक छोटा बच्चा दूर से देखता है, सारे बच्चे उससे कलरफुल गुब्बारे लेते हैं, पिंक वाला, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और इसकी भी इच्छा होती है कि मुझे भी गुब्बारा लेना है। वो भी जाता है उसके पास, उसको पैसे देता है, और वो बलून वाला उसको ब्लैक कलर का गुब्बारा देता है। विच कलर? ब्लैक। और ब्लैक कलर का गुब्बारा देख के ही वो सो शॉक, बिकॉज इज अ स्मॉल चाइल्ड, ही डोंट नो अबाउट अदर कलर। उसे ये लगता था कि सभी लोगों के पास कलरफुल गुब्बारे, ब्लैक इज लाइक यू नो ऑर्डिनरी। और तो वो पूछता है कि आपने मुझे जो गुब्बारा दिया ये उड़ेगा क्या, क्योंकि आपने तो बाकी लोगों को कलरफुल दिया था, यस और नो? तो उन्होंने जो आंसर दिया था वहां पे हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा मॉरल है। गुब्बारे वाले ने आंसर दिया था कि इस गुब्बारे का जो उड़ना है वो उसके बाहर की कलर के ऊपर नहीं, उसके अंदर भरे हुए हवा के ऊपर है। उसी तरह लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका आगे बढ़ना भी आपकी एक्सटर्नल चीजों पे नहीं, तो अपने इंटरनल माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या इस बात के ऊपर अप्लॉज हो सकती है सर? वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि आज बताना मैं ये चाहता हूं क्योंकि योर माइंडसेट विल डिसाइड। Even if I have done a normal graduation degree, not so great from IIT, IIM, but today I am getting invited from all the sector for one day program at a so great level. हिंदी में होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मेरा अंदर की हवा अगर मेरी अच्छी नहीं रहती तो शायद आज मुझे ये चीजें नहीं मिलती। Are you getting my point? Yes or no? Yes. स्ट्रेस क्यों होता है? मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। Am I right? Yes or no? आप लिख सकते हो इफ यू आर राइटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज माय एंटायर प्रीवियस जर्नी रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो व्हाट मीन स्ट्रेस इन मी? तो मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के ब्रैकेट में आप एक वर्ड लिख लो, प्रिपरेशन। am I right, yes or no? because your preparation will tell that, will suggest that, will convey that कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। yes or no? एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल मैडम का लेता हूँ। मैडम रेड मैडम, आपका नाम क्या है? वेट की दर्शना। दर्शना मैडम, नहीं आप मास्टर की बात करो। दर्शना जी, एक एग्जांपल कहता हूँ कि मान लो कि आपके एग्जाम, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 10 दिनों के अंदर आपकी एग्जाम है, और 10 दिनों के आपके अंदर एग्जाम है, और मुझे पता है कि ज्यादातर तो आप आखिरी में ही पढ़ते हो। यस और नो? हाँ बोल रहे हो। 10 दिनों में आपकी एग्जाम है एंड यू प्रिपेयर एट द लास्ट आवर, 11th आवर से, और अचानक से कोई इंसान आता है कहता है कि इस बार की एग्जाम बहुत टफ होने वाली है कोविड की वजह से,
एंड यू आर गोना फेल, और आप जो हो आपका स्कोर बहुत कम होने वाला है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैडम आखिरी मोमेंट पे अगर प्रिपरेशन करते और कोई इंसान विद रीजन अगर मैडम को ये बताता है कि इस बार की एग्जाम टफ होने वाली है, तो उसके बाद में क्या मैम के दिमाग में फियर जनरेट होगा? यस और नो? यू ऑल आर गिविंग मी आंसर, यस और नो? क्योंकि ऑलरेडी वी डिस्कस दैट कि शी ऑलवेज स्टडी इन लास्ट, और अचानक कोई अगर ऐसा सेंटेंस कमिट करता है जिससे मेरे माइंड में वो ख्यालात आ सकते हैं। डू यू नो हमारे दिमाग में कौन से थॉट आते ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहला थॉट हम लाते, लेकिन उसके आगे जो 10-15 जो थॉट होते पॉइंट, वो एकदम सबकॉन्शियसली आते रहते। तो मैंने अगर मैडम को बोल दिया, कृतिका मैडम ना, दर्शना सॉरी, दर्शना मैम को अगर मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा एग्जाम टफ होने वाला है, तो सडनली उनके दिमाग में वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। यस और नो? सच में टफ गई तो, मार्क्स कम आए तो पापा क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, शादी का क्या होगा? एग्जाम्पल, शादी का कोई रिलेशन नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। am I right? yes or no? तो यहाँ पे क्या क्लियर होता है? अब मैं केस 2 पकड़ता हूँ। इन केस 2 दर्शना इज सच अ स्टूडेंट कि जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होते ही पहले ही दिन से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे टॉपिक हुआ, टॉपिक होने से पहले मैडम रीड करते, टॉपिक हुआ, सेकंड होता है और थर्ड टाइम शाम को प्रिपेयर करते हैं एवरी डे। और ये रेगुलर मैम ने किया है, अभी 10 दिन बाकी, और अचानक मैं जाके कह रहा हूँ कि इस बार की एग्जाम बहुत टफ होने वाली है, और ये एग्जाम इतनी टफ होगी कि बहुत जबरदस्त। उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ेगा? यू टेल मी। नहीं, क्यों? प्रिपरेशन, द स्ट्रेस जो रीजन है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट में स्ट्रेस के पीछे का रीजन माइंडसेट है, और कुछ कंसेप्ट में स्ट्रेस का रीजन जो है वो प्रिपरेशन है। क्योंकि अगर कोई भी चीज मुझे, इवन इफ नाउ आई एम गिविंग this lecture to the student only, so most of the time the reason of stress is what? Exam only. am I right? yes or no? most of the time career problem, like कि अभी कोविड की वजह से स्टूडेंट के लाइफ में थोड़ा सा हुआ है बहुत सारा प्रॉब्लम, तो that can lead them to the take them to the stress। तो उस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपका प्रिपरेशन सही है, so stress will never disturb you। am I right that way? yes or no? नहीं सुना मैंने, यस और नो? थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि क्या होता है आज अगर यू नो देयर वाज अ व्हाट्सएप मैसेज जिसमें कहा गया था कि लाइफ, यू नो लाइफ, LIFE, उन्होंने क्या किया, अल्फाबेट है, A को 1 और Z को कितना आएगा, 26, 25, 26, राइट? तो दे हैव गिवन नंबर टू एवरी लेटर। तो उन्होंने लाइफ का L लिया, वो नंबर लिया, I लिया, नंबर लिया, F लिया, नंबर लिया। आई वुड हैव शोन इट, बट वी आर रनिंग शॉर्ट बाय टाइम, तो इसलिए मैं कहूंगा। तो ऐसे कई सारे वर्ड है जिसमें लव भी है, सक्सेस भी है, ड्रीम भी है, एंड वी हैव गॉन सच अ वर्ड सर कि जिसका टोटल क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एंड दैट वर्ड भी कन्वे अ मैसेज behind importance of that particular concept. Love, LOV, important, I accept it. Success, study, do you know what is that word, which is what? Discipline. हाँ, because their alphabet summation should be 100. Confidence, very good. सर के लिए एक जबरदस्त applause होनी चाहिए, come on, जबरदस्त। And the word is attitude, ATTITUDE. You can cross check and you will get the answer. We have less time, that's why I won't waste your time, and that is our third topic for the stress management, that is your attitude. How you look towards the thing. Attitude is like a speck, color of the speck. Your knowledge is not 100%. Never, knowledge is also not 100%. Knowledge is like it's like an ocean. You can never be complete person. Do you know the difference between knowledge and information? What is the difference between knowledge and information? You have started studying a new chapter of your physiotherapy, am I right? New chapter. When you are reading that, so does it your knowledge or information? Information. So when it will get considered as a knowledge? Experiences, very good, good one. I need exact word. When? Good one, but 80% close. whenever we apply. Wow, very good. जबरदस्त। आपका नाम क्या? अपूर्वा। अपूर्वा जी के लिए जबरदस्त एप्लॉज। देखो हम लोग कम है लेकिन एप्लॉज अच्छी होती है। कम ऑन, जबरदस्त, थैंक यू। अपूर्वा जी आज आंसर इन अ परफेक्ट वे, बिकॉज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट द नॉलेज, एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द नॉलेज।
गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट द रीजन सर, क्योंकि आज अगर एटीट्यूड के अगर देखा जाए, एक बार क्या होता है, एक स्टोरी, फनी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक जो भक्त होता है वो अपने गुरु के पास जाता है, भक्त अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि सर कुछ भी कर दो लेकिन मुझे इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल बनना है, मुझे कामयाब बनना है। टेल मी सम स्टोरी, टेल मी सम सीक्रेट, टेल मी सम फॉर्मूला व्हिच कैन मेक मी सक्सेसफुल। आप मुझे ऐसा कुछ बताओ कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को क्या बना सकता हूं, सक्सेसफुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गुरुजी बोलते हैं कि आपको क्यों सक्सेसफुल होना है, तो कहते हैं कि दैट इज द रीजन ऑफ माय लाइफ, व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल पीपल विल कॉल मी एज अ सक्सेसफुल। और मेरे लिए बहुत जरूरी थी। तो गुरुजी बोलते हैं कुछ मत करो, अपने लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज कर दो कि जिसके वजह से जितनी भी चीजें आपको दिखेगी, दे ऑल थिंग्स शुड बी ऑफ ग्रीन कलर। आप समझे मुझे क्या कहना है? अपने लाइफ के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस करो कि जिसके वजह आपको दिखने वाली सारी चीजें ग्रीन होनी चाहिए। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो देखो गुरुजी भी कैसे रहते हैं, दे ऑलवेज आस्क कि जो भी मैं बताऊंगा उसको खर्चा तो लगेगा, लाख तो खर्च है, यस और नो? क्योंकि वो खर्चे के लिए गुरुजी होते हैं, यस और नो? आई डोंट नो, कुछ सुना ही नहीं आपने, मैंने बोला भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि खर्चा तो लगेगा, तो वो वहां से जाते हैं और ही डिसाइड दैट कि कुछ भी करूंगा मुझे मेरे आंखों को सिर्फ ग्रीन कलर दिखना चाहिए। वो अपने घर के दीवार को ग्रीन पेंट करता है, उनके बच्चे जितने भी कलर के कपड़े होते हैं सब निकाल के ग्रीन कपड़े डालता है, उनकी बीवी को बोलता है ग्रीन कलर की साड़ी पहनने की, लिपस्टिक भी ग्रीन लगाने की। उनके बच्चे जो थे वो रेड रोज स्कूल में जाते थे, उनको भी ग्रीन वाले भी डाल दिया, ग्रीन चाहिए ना, सब कुछ ग्रीन कर दिया, घर ग्रीन, कार ग्रीन, एवरीथिंग ग्रीन। और फिर वो अपने गुरुजी के पास जाता है, 7 महीने हो जाते हैं, और गुरुजी को बोलता है गुरुजी व्हाई दिस कोलाबरेटी, यस और नो? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ भी बदलाव नहीं आया लाइफ के अंदर। गुरुजी बोलते हैं आपने क्या किया? बोले मैं घर गया। बोले फिर क्या किया? बोले मैंने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। बोले कितना टाइम हुआ? बोले इसमें कई महीने, मैं तो कहता हूँ कुछ साल चले गए। बोले कितना खर्चा लगा? बोले मेरे को टोटल 40 लाख रुपए लगा टोटल। तो गुरुजी कह रहे थे यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर मैंने तुझे बोला था कि सब चीजें ग्रीन कर दो, 40 लाख की जगह पे 40 रुपए का अगर ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेता, पूरी लाइफ अपने आप ग्रीन हो जाती। क्या बोल सकता है? यस और नो? यस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एटीट्यूड, हाउ यू लुक टुवर्ड्स द थिंग। मैंने कैसा कहा सर, एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम नहीं बताई थी मैंने, थोड़ा सा क्या मैं देख, मतलब एज अ फ्रेंड में बात कर सकता हूं ना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मैसेज। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मतलब मैं नीचे गिरा, ट्रेन आगे गई, फिर ट्रेन को टीसी ने रोका, फिर कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे उठा के उसी ट्रेन के अंदर डाला, और यहाँ का जो मेन वेन जो भी रहती है, नस ज्याला अपन म्हणतो मोठी, वो कट हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग था। और जब मुझे वहां पे रखा गया तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, माय फ्रेंड, ही वाज विद मी, और उसकी वजह से आई एम वेरी ग्रेसफुल अबाउट इट, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो मुझे कोई उठा नहीं रहा। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे बोला कि भूषण तू टेंशन न घेऊ, सगळं व्यवस्थित होऊन जाईल। बट हा तो भूषण होता, ये वो भूषण था जो पिछले 10 महीने से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, जो पिछले 10 महीने से स्टेज प्रोग्राम कर रहा था, जो पिछले 10 महीने के अंदर मैं कह सकता हूं कि द सीक्रेट, यू कैन विन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे बुक उसके खत्म हो चुके थे बिफोर द एक्सीडेंट। तो उसने मुझे पूछा कि टेंशन नहीं लेना है, मैंने जो उसको आंसर दिया था, दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एटीट्यूड। मैंने बोला था कि मेरे लाइफ में मैंने जितने भी स्टोरीज देखे, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ मेडिकल ट्विस्ट था। am I right? yes or no? अमिताभ बच्चन जी को कुली पिक्चर के अंदर इंजरी हुई थी, यस और नो? सचिन तेंदुलकर जी को टेनिस एल्बो हुआ था, यस और नो? युवराज सिंह, इनको कैंसर हुआ था, डू यू नो दैट? एक उसमें तो मैं एक अभी केस स्टडी बना रहा हूं। अभी जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता ना, उसके अंदर वेस्ट इंडीज के साथ में जो मैच थी जिसमें सिर्फ अकेला युवराज खेला था, उस मैच के अंदर उसको कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो रहा था ऑन ग्राउंड, एंड ही प्लेड एंटायर मैच विद दैट ब्लीडिंग ओनली। मेनी पीपल विल बी नोइंग दैट ऑलरेडी, ब्लड कैंसर पेशेंट। सो अब्राहम लिंकन जी को ब्रेन ट्यूमर था, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने उसको बोला कि इन सारे लोगों के लाइफ में कुछ मेडिकल ट्विस्ट है, मेरे लाइफ में ट्विस्ट नहीं था, अभी ट्विस्ट तो आ ही गए, तो सक्सेसफुल तो अपने को बनना है, गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब कि इंसान की जो स्टोरी होती है उस, अब देखो ना, आई कुड हैव सीन दिस लाइक, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मेरी बॉडी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, मुझे बैठ के काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, उसके लिए 2 पैर चाहिए, मेरा तो एक पैर ही नहीं है। ये कहना मुझे पॉसिबल था, लेकिन क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं। तो जो भी चीजें आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं, तो योर एटीट्यूड इज द ओनली थिंग व्हिच कैन हेल्प यू, द वे यू हैव टू टेक ओवर देयर।
क्योंकि मैं एक ही चीज कहूंगा कि वहां पे मैं ये सारी चीजें कह सकता था। आई हैव गवर्नमेंट फैसिलिटी, बीइंग फिजिकली डिसेबल पर्सन, मैं अपने घर पे बैठ के कुछ गवर्नमेंट का काम करके कमा भी सकता हूं, बट आई नेवर वर्क फॉर दैट। इवन मेरे कुछ दोस्त थे जो नाम के लिए दोस्त होते हैं लेकिन वो एनिमी रहते, चिढ़ाने वाले, कि जब मैं कर रहा था ना तो बोल रहे थे कि तू मत करिए। जो भी मैं ट्रेनिंग वगैरह करता था बोले कॉलेज कर, सिर्फ कॉलेज करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कॉलेज के साथ में आप अगर अपने आप को ग्रो करते हो, देखो व्हाई दिस एक्टिविटी हैज बीन कंडक्टेड, यू टेल मी, इज इट अ पार्ट ऑफ स्टडी ओनली? नो, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर नर्चरिंग, कल्टीवेशन, आई वुड यूज दिस वर्ड। एम आई राइट, यस और नो? और मेरे दोस्त यही कहते थे कि तू ये मत कर, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो आफ्टर 2 days ही केम टू मीट मी, मेरा दोस्त, और उसने कहा देख अभी तेरे को पहले ही बोला था करना नहीं है, अब तो तेरा एक पैर नहीं है, अब तू बैठ नहीं पाएगा तो खड़ा कैसे होगा? मैंने बोला अब मैं वो प्रोफेशन चुनूंगा जिसमें हर दिन मुझे 10 बार खड़ा होना पड़े। आई विल चैलेंज माई सेल्फ। आई नेवर टुक इट एज अ रीजन ऑफ स्ट्रेस, आई मेड इट एज अ रीजन ऑफ सक्सेस। Are you getting my point? Because that can be your reason of stress also and your reason of success. Do you know the financial classes? अभी जो मार्केट डाउन हुआ है कोविड की वजह से, इससे पहले पिछला मार्केट 2010 में डाउन हुआ था सर, और दैट टाइम इतना बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था कि उस वक्त मार्केट में जितने भी कंपनीज थे, दे हैड टू शिफ्ट टू अ न्यू सेगमेंट, ऑनलाइन सेगमेंट, ई कॉमर्स सेगमेंट, सोशल मीडिया सेगमेंट, एंड डू यू नो इन दैट पर्टिकुलर मार्केट क्लैश देयर वर 2 ऑप्शन विद द कंपनीज। कंपनी के पास में 2 ऑप्शन था कि मार्केट क्लैश हुआ है, अब कुछ नहीं होगा, कंपनी को वाइंड अप करके भाग जाना, और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि इसी को एक पॉजिटिव रीजन बना के अपना एक न्यू वर्जन स्टार्ट करना। और फिर वहां पे जिन लोगों ने स्टार्ट किया उनमें से कई कंपनी लाइक ओला है, सब जितने भी कंपनीज है, नाउ दे आर मेकिंग बेस्ट मनी। am I right that way, yes or no? So that market clash is like your stress only. In that situation you can make it as a reason of stress and you can downgrade yourself। 3 टेक्निकें लिख लो, ट्रिपल एफ जिसे बोलते हैं, फ्रीज, या फ्रीज पता है ना, फ्रीज हो जाना, फ्रोजन जो बोलते हैं, फ्लाइट, FLIGHT, एंड फाइट। ये थोड़ा टेक्निकल स्ट्रेस में घुसा मैं अभी, जो एकदम सो कॉल्ड लेक्चर, फ्रीज, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट लेते ना, हाँ, उसके बाद फाइट, FIGHT, yes, freeze, flight or fight. These are the 3 options which you can have when you are under the stressful moment situation. Are you getting my point? What do you mean by freeze? The word itself explaining the moment. Am I right, yes or no? क्या आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि आप फ्रीज हो जाते हो, जहां पे वापस स्टक हो जाते हो, और आपको कुछ भी नहीं सूझता, तो आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते और कुछ भी कमेंट नहीं करते। Am I right, yes or no? Yes or no? ये एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हो, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है विच इज दैट फ्लाइट, फ्लाइट अलग है। फ्लाइट मतलब क्या पता है? अब जैसे कि मेरे पास एक वीडियो भी थी जिसमें ये था कि मान लो कि एक मगरमच्छ, आप एक तालाब के किनारे हो और आपको पता चला कि मगरमच्छ आ रहा है, तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा, यस और नो? अगर आप फ्रीज रहोगे तो कुछ नहीं, बगल होता है ना कि शिव 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 शंभो शंभो, अब ये फ्रीज हो गया, कुछ नहीं करना। उसने क्या किया? फ्लाइट किया। फ्लाइट मतलब क्या कि वो अपने आप को वहां से दूर करता है, उड़न जाना। दूर, आप समझ गए मुझे क्या कहना है? उसको अवॉइड करना या दूर जाना। और एक फाइट एक अलग होता है, फाइट मतलब उसको फेस करना, और फेस करने के लिए आपको राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट की जरूरत है। आई टुक दिस सिचुएशन बाय द वे ऑफ फाइटिंग टुवर्ड्स इट, नॉट फ्रीजिंग ओवर दैट और नॉट फ्लाइटिंग अवे फ्रॉम दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये मेरा नाही, स्ट्रेस मॅनेजमेंटचं जे सगळ्यात मोठं पुस्तक आहे त्याच्यातले 3 टेक्निक, यू विल गेट एनीवेयर, एकदम टेक्निकल, मैं वो भी ले सकता था, बट आई वांट टू कन्वे मैसेज डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट, जो मैं अपने तरीके से दे सकता हूं। तो आज ये 3 ऑप्शन आपके पास है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, अगेन ट्राई टू रिलेट विद माय मैसेज, we are made to utilize our potential। this is that भूषण कहनार कि जिसके लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी थी, लेकिन उसने फिजिकली खुद को चैलेंज किया कि मुझे इस सेक्टर के अंदर अपने आप को चैलेंज करना है। आप समझ गए? जिसको मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट था, उसने अपने आप को वो भी किया। It was too difficult to speak fluently in English, but I have converted myself, I have practiced so much, and today I am able to speak English fluently also। So it is like your mindset should be myself Darshana, and I will be challenging myself in every area of my life। Are you getting my point? Suppose now this is just a 10 days before the exam, it's okay। तो अभी जितने दिन मेरे पास बाकी हैं, फ्रीज करने से अच्छा, फ्लाइट करने से अच्छा, I will be fighting towards it। Am I right, yes or no? एक जबरदस्त अप्लॉज मैडम के लिए होनी चाहिए, जबरदस्त। Getting my point? And this option is with every person। Am I right, yes or no?
नहीं सुना, यस और नो? और हर चीज को, अब जैसे कि हो सकता है कि मैं जब भी यहाँ पे बैठी हूँ ना, एसी चलता है, फिर मेरे को नींद आ जाती है। अब इसको भी आप ऐसे देखो कि देखो एक दूसरे को देख रहे, जिनको आ रही वो देख रहे। इवन इफ यू कैन लुक टुवर्ड दिस आल्सो, एग्जैक्टली काबर झोप लागते बरं मला, व्हाट इज द रीजन, मुझे क्यों नींद आ जाती है? टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है इसलिए, व्हाट इज द रीजन? तो अगर आप थोड़ा डीपर क्वेश्चन पूछोगे, यू विल गेट सम आंसर। आई एम राइट, यस और नो? एंड टेक इट एज अ सेल्फ डेवलपमेंट पॉइंट। अगली बार मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, थोड़ा अलग एंगल से बोलो, लेकिन जरूरी है। आई डिड इट एवरी, मेरे लाइफ का हर चीज को मैं वैसे, मेरा टेम्परामेंट बहुत हाई था। नाउ आई आस्क मेनी क्वेश्चन टू माय सेल्फ, जिससे मेरा लो हो गया। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता था, अभी मेडिटेशन करता हूं। एवरी मॉर्निंग आई हैव सो मेनी सेवर एक्टिविटी, यस ए वी ई आर। गेटिंग माय पॉइंट कि सुबह उठने के बाद आपको कई सारी एक्टिविटीज है, रीडिंग हो गया, अफर्मेशन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, आपको ये रेगुलर करना है। तो जब भी आपके साथ जब स्ट्रेसफुल मोमेंट आती है, तो टेक इट एज अ चैलेंज। इवन इफ आई शुड नॉट एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑन स्टेज, बट दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ stress, like relationship problem. At this age many things happens, I need to do it, is not by the educational angle, but still it is important, I can't avoid that. तो in that case also एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको लिखनी है। आपके लाइफ में दो टाइप की चीज है, एक जो आप कंट्रोल कर सकते हो और एक जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Am I right, yes or no? Even if stress के 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे by educating your mind that I can control few things only. The things which I am unable to control, उस बारे में मुझे टेंशन लेना ही नहीं है। अगर हर दिन सुबह उठ के मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये लेग वापस कैसे आएगा, What should I do कि ओरिजिनल लेग वापस आ जाए, and that can be reason of my stress also. Now it's paining me so, जो भी मैंने प्रोस्थेटिक लेग लगाया है, तो जहां पे भी वो टच हो रहा है वहां पे पेन तो हो ही रहा है ना। आई एम स्पीकिंग दिस विद स्टैंडिंग, तो ये जब जब पेन हो रहा है तो मैं पूछ सकता हूँ भगवान को, यार मेरे ही साथ क्यों हुआ, या फिर मैं कितना भी अच्छा क्यों ना करूं और अगली बार अगर फिर से दूसरा पेन चला गया तो क्या, ऐसे भी ख्याल रखा सकते की म्हणजे मी सगळं काही परत चांगलं करायचं आणि परत नीतीचा काही घाला यायचा। गेटिंग माय पॉइंट कि ये चीजें ऐसी हो सकती कि फिर से मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन ऐसे वक्त हमें जो करना है वो यही है कि जो चीज मेरे हाथ में है, आई विल बी थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। यस और नो? माय स्कोर इज इन माय हैंड, यस इट इज। नाउ यू बी लाइक अ गाय इज देयर कि जिसको 10th स्टैंडर्ड में 36% थे, तो क्या वो अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन में फिजियोथेरेपी में क्या वो टॉप कर सकता है? आंसर इज यस। क्योंकि टॉप करना इतनी बड़ी बात नहीं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, योर प्रेजेंटेशन इन एग्जाम, योर मेमोरी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन। Am I right, yes or no? And if he will be challenging in every sector by managing this all thing, so definitely he will be able to convert. And the last program also I told the example. One of my student was there, Sandesh Sharma from Pune. In 12th standard he was having 53%. 12th में उनको 53%, और ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में he was the second topper of Pune University with 96%. अप्लाइज हो सकती है, yes or no? हो सकती है, yes. Everything is possible. इस दुनिया में हर इंसान सब कुछ कर सकता है, yes or no? Yes or no? उसके लिए बस उसे ये जो आखिरी सर ने जो आंसर दिया था, एटीट्यूड, that matters a lot. To reach here, मुझे कई सारे प्रॉब्लम आई, मैं उसको देख के कह सकता हूँ ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि एक जगह पे बैठ के मेरे को पैसा मिल जाए। लेकिन जितनी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है उतना कम रिजल्ट होता है, और जितनी पेनफुल सिचुएशन रहती है उतना ज्यादा रिजल्ट होता है। Am I right that way, yes or no? Yes. एक एग्जांपल मैंने जो आपको गुब्बारे की स्टोरी बताई, that is all about balloon and having quality of the air. Am I right, yes or no? Balloon quality of the air, human being and quality of inner skin. Yes or no? अब आप मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा एक इंडियन एटमॉस्फेयर को सर थोड़ा सा मैं कुछ इस बारे में मैं हेट भी करता हूँ, या फिर आई एम नॉट हैप्पी विद द इंडियन एटमॉस्फेयर कि बच्चे को बचपन से ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि गलती ना हो। मतलब आज मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है, छोटी गर्ल है 1.5 साल की, और मेरी भाभी है। अब आता आईचं काळीच, मम्मा की ममता बोलते ना, माँ का प्यार, वो ऐसा रहता है कि जो हर जगह पे उनको प्रोटेक्ट करता है। बट नाउ आई एम कोचिंग टू एंटायर वर्ल्ड, आई कैन कोच दैट डॉटर आल्सो, यस और नो? बट एट एवरी मोमेंट दैट लव ट्राई टू डिस्टर्ब ओवर देयर, रेजिस्ट ओवर देयर। और इंडिया में यही होता है कि इंडिया में ज्यादातर आपको मिस्टेक की वजह से दूर रखा जाता है। अगर इंडिया में कुछ लोग स्टार्टअप करे तो नहीं आप डूब जाओगे। अगर आप कुछ आर्ट फील्ड में करियर बनाए तो नहीं आप नहीं कर पाओगे।
अगर आप डायरेक्टली हॉस्पिटल लाने का सोचो तो नहीं आप नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल, दैट इज नॉट माय टॉपिक बट स्टिल आई कैन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसका स्ट्रेस से क्या रिलेशन है, आई विल टेल यू। अगर गलतियां होगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस मिलेगा तो अपस्किलमेंट होगा, और तब जाके आप आगे बढ़ोगे। इट इज माय एक्सपीरियंस। एक एग्जांपल, मेरे साथ में दर्शना जी, शी इज माय क्लासमेट, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एंड आई एम टीचिंग टू एंटायर वर्ल्ड। यस, आई एम टीचिंग एंटायर वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ बुक पढ़ के, मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू। और जो मेरी क्लासमेट है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ कि आप ये चीजें करो, जरूरी है। आप समझ रहे मुझे क्या कहना है? लेकिन जब तक आप ऐसे एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं बनते जहां पे आपसे गलतियां होगी, तब तक आप नई चीजें नहीं सीखोगे, और आप हमेशा अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखने की कोशिश करते हो जहां पे गलती ना हो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि हर सिचुएशन में जहाँ पे कुछ दिक्कत होगी तो दैट विल बी गिविंग मी अ मैसेज। आर गेटिंग माय पॉइंट? और मैं अगर दर्शना, जो मेरी क्लासमेट है, मैं अगर उसको कहूँ कि देखो मैंने गलती की थी, तुझे नहीं करनी है, चलिए ओके आई विल नॉट, लेकिन 2 सेकंड के अंदर वो भूल जाएगी। लेकिन जिस दिन दर्शना खुद वो गलती करेगी, उसको उसके वजह से तकलीफ होगी, that day she will educate herself at a very perfect level, और वही चीज उसको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। And that the reason, इसलिए फॉरेन में इन सारी चीजों के लिए प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना पड़ता है। और आज आप बहुत लकी हो, यू आर पार्ट ऑफ सच ए इंस्टीट्यूट। आज ऐसे भी इंस्टीट्यूट है इंडिया में कि जहाँ पे मास्टर डिग्री होने तक भी ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी, फंड, फाइनेंस, मेनी मोर थिंग। बट यू आर लकी टू हैव बी अ पार्ट ऑफ सच ए इंस्टीट्यूट, इवन कि जो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। You are lucky for that, yes or no? Yes. So should you clap or not? Yes. क्योंकि हर कॉलेज में नहीं होता है। और क्या लगता है कि मैंने अभी तक जो पॉइंट बताया, ये बस एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वाला डिस्कशन था। मेरे को स्लाइड दिखाना भी पॉसिबल था एक टेक्निकल वे से, लेकिन मेरे को लगता है जितना मैसेज स्लाइड कन्वे करेगा ना, उससे ज्यादा मैसेज मेरी फीलिंग्स कन्वे करेगा। And you can look at my eyes. I am trying to cover every person who is attending. सॉरी टू कि मैं ज्यादा ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ, स्टूडेंट को ही ज्यादा देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जरूरी है। यू गॉट माय पॉइंट? यस और नो? नहीं सुना मैंने, यस और नो? सिंपल। तो स्ट्रेस के लिए हैविंग अ गुड माइंडसेट, इवन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, नाउ आई एम लिविंग इन अप्रैल 2021, सो भूषण ऑफ दिसंबर 2020, भूषण ऑफ अप्रैल 2021 एंड भूषण ऑफ दिसंबर 2021 डिफरेंस होनी चाहिए। दिस इज माई ओन टारगेट। और जो भी चीजें मेरे लाइफ में होती है, रिलेशनशिप हो या फिर मेरे फैमिली में कुछ हो, मेरे करियर में कुछ हो, अगर मेरी गलती है तो आई विल ट्राई टू लर्न समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नहीं सुना, यस और नो? और अगर मेरी गलती नहीं है तो ऑलरेडी बता दिया कि जो एरिया मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेके कोई मतलब नहीं। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ आइसक्रीम टू द टीनेजर। यू नो आइसक्रीम, यू लाइक इट? अरे वाह, आइसक्रीम की क्या खासियत है? अगर आप आइसक्रीम को कोन के अंदर ले रहे हो और आपके हाथ में आइसक्रीम, आप उसकी टेस्ट का मजा लो या ना लो, वो तो पिघलने वाली है। Am I right? Yes or no? So what is the purpose of behind this example? You tell me. मैं ऐसा क्या एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ? Your life is like that ice cream only. क्योंकि देखो, जो चीज आप कंट्रोल में नहीं ले सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोच के ये वो आइसक्रीम है, अगर आप नहीं खाओगे तो भी वेस्ट होने वाली है। सो बेटर वे, आप आज के दिन को एक नए लर्निंग से, एक नए ग्रोथ से, एक नए अपलिफ्टमेंट के साथ जीने की कोशिश करो। यू नो देयर शुड बी अ ग्रेट फिलोसॉफी कहने से अच्छा एक माइंडसेट होनी चाहिए लाइफ को जीने के पीछे। माय माइंडसेट इज लाइक एवरी मोमेंट आई विल लिव दिस लाइफ and I will also fight to create my existence. Balance, you know balance? क्योंकि अगर आप सिर्फ जीने के पीछे लग जाओगे तो जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आप कोई बड़ा काम नहीं करोगे या फिर कोई बड़ी स्टोरी नहीं लोगे। और अगर आप सिर्फ सक्सेस के पीछे भागोगे तो जिस दिन आपका देहांत होगा तो you'll be having lots of regret कि मैंने अपने लाइफ में एंजॉय भी नहीं किया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, बच्चों को नहीं दिया। मैडम पिछले पिछले वीक में दुबई के एक सीए है यूके के लिए, उनका नाम है इरम, पाकिस्तान से दुबई में वर्कआउट करते, तो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच में उनको ऑनलाइन कोच कर रहा था। आपको दिखाया शायद मैंने? यस। तो उन्होंने बताया कि माय सैलरी इज ऑलमोस्ट, कुछ दिरहम बताया उन्होंने, 3-4 लाख होता है, और हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, बच्चे भी अच्छे हैं,
but I am feeling so much low in my life. So I was like, why you are feeling low? So she was like, don't know, nothing interesting is going my life. In English only we were having the discussion. I have the video also, if you anyone need you can contact, because उसमें मैंने उनके इतने सारे thoughts clear किए. मैंने उनको बताया कि एक मोमेंट है, आपके पास बच्चे हैं, आप उन बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बाद में आप कितना भी पैसा दोगे तो वापस आएगा यस और नो? नो. आज आपके साथ में कॉलेज है, मैडम है, सर है, इनके साथ जो मोमेंट आपको जीना है ये वापस नहीं आएगा. हमें राइट दैट में यस और नो? यस. कहते हैं कि आपको जीने के लिए नहीं सीखना है बल्कि सीखने के लिए जीना है. आप समझ गए मुझे क्या कहना है? सीखने के लिए जीना है. रीजन भी सांगतो, जेवढे प्राणी जितने भी जानवर इस दुनिया में है उनमें पढ़ने की एबिलिटी किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग ओनली. ओनली वी आर सच अ एनिमल, सच अ स्पीसीज, दोज हु कैन लर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रेन, माइंड आई वुड से, नॉट ब्रेन. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमारे पास माइंड है एटलीस्ट. तो आज आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए. अभी मैंने बाजार मूवी देख रहा हूँ, वो मूवी आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, लेकिन मेरी हर मूवी मुझे कुछ बड़े खुद के दिमाग को अपलिफ्टमेंट देने वाले सेंटेंस निकाल दो. अब वो मूवी में बाकी फालतू चीजें भी होती है, लेकिन एक डायलॉग था, हारने वाले में और जीतने वाले में एक ही डिफरन्स रहता है. वो है क्या? भूक. जो जिंकतो तो यामुळे जिंकतो कारण की त्याला जिंकण्याची भूक जास्त असते, उसको जीतने की भूक बहुत है. उससे इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? बर्निंग डिजायर, which has been said by Dr. APJ Abdul Kalam sir. What is the difference between winner and loser? That the only difference is desire, your hungriness, and the same desire you can. अगर मेरे माइंड में है कि मेरा लाइफ के प्रति डिजायर इतना हाई, आई हैव टू प्रूव अ लॉट. मेरा टारगेट था कि मुझे गूगल पे मेरा इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, दैट आई हैव अचीव. मेरा टारगेट था मुझे कम एज में मिलियन करना है, दैट आई हैव अचीव. मेरा टारगेट था कि मुझे इंडिया में बुलाना चाहिए, दैट आई हैव अचीव. मेरा टारगेट था कि इंडिया से बाहर मुझे जाना चाहिए, ऑलरेडी दैट आई हैव अचीव. बट स्टिल फ्यू टारगेट्स आर रिमेनिंग. After my age of 35, my 80% income will get donated to this society for noble cause. This is my target. But ये वही इंसान कर सकता है जो पहले उतना पेट से, जेब से उतना जबरदस्त हो. तो till 35 I have to be like that. Then I will be doing. तो अगर मेरे दिमाग में इतनी बड़ी लिस्ट है विद डिजायर, उसके सामने अगर कोई इंसिडेंस होता है, रिलेशनशिप, फैमिली, एग्जाम, अब टारगेट इतने बड़े हैं कि वो छोटी छोटी चीजों से मेरे माइंड में स्ट्रेस आएगा, यस और नो? यू टेल मी, आएगा क्या? नो, बिकॉज दैट विल बी नेग्लिजिबल थिंग. और जिनके लाइफ में कुछ भी नहीं होता है उनको छोटी छोटी चीज भी बड़ी सी दिखेगी. Am I right? Do you know out of 24 hours medical science says that 8 hours you need to sleep. It means अगर 60 साल अगर आप जीने वाले हो तो 20 साल तो आपकी नींद में ही जाने वाले. कैलकुलेटिंग. तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें स्टेज पे कमिट नहीं कर सकता, लेकिन अपने बारे में बता सकता हूँ. आई यूज्ड टू स्लीप, या फिर मेरा स्लीपिंग टाइम सिर्फ 4.5 घंटे. You should not, because you need to have a 8 hour sleep. जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूंगा, क्योंकि उसको भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला अपने बॉडी को जैसे आप बनाते हो वैसे बन जाता है. अब जो बंदा एक चीज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है, उसके लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो स्ट्रेस होगा, यस और नो? तो दिस इज द लास्ट पॉइंट was there by me. Increase your desire at such a higher level. So small incident, small movement, small problem, small mistake. Even if, sorry to say, but किसी के घर में किसी क्लोज इंसान की डेथ होती है, जो सबसे बुरी चीज होगी इस दुनिया में, क्योंकि पैसा आ जाता है, सक्सेस गया हुआ वापस आ जा सकता है, एक इंसान जेल में जाके वापस सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन एक कहते हैं लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ फादर, ब्रदर, वाइफ, यू कांट रिकवर देम. आई नो दैट, बट स्टिल एट दैट मोमेंट ऑल्सो यू कैन गिव फ्यू डेज, फ्यू मिनट. But after that, what they people will be thinking about you from that place? वो यही कहेंगे कि हमारे जाने के बाद भी इनको खुश रहना चाहिए. Am I right, yes or no? तो उस वक्त भी स्ट्रेस अगर आता है तो your mindset matters a lot. जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं यही बोलता हूँ कि आपकी माँ आपसे प्यार करती थी, जैसे यस. उनको क्या लगता है आपने रोना चाहिए? बोले नहीं, वो तो कहती है हमेशा हंसना चाहिए. मैंने बोला फिर आप उनके जाने के बाद क्यों रहे हो? थोड़ा दुख होता है. फिर आप बोलो आपने ये टॉपिक क्यों लिया? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्ट्रेस. रिलेशनशिप डैमेज, समझ रहे? किसी लॉस ऑफ सम पर्सन, स्पेशल पर्सन, whoever he is, she is. So in that case I would say again your mindset, you are looking towards it. One few things I would like to add on this your page of stress management. Three things I would suggest. Whenever you are feeling stressful, there is a technique which is called as a LICO, asking right question. Matters a lot. For example, COVID atmosphere is there and everyone, not everyone, but most of the people are getting
वो वायरल हो रहा है और वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। इन दैट एटमॉस्फेयर मेरे दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन रेज होता है, अगर मैं कोविड पॉजिटिव हो गई तो। एक एग्जांपल मैंने किया था अभी जस्ट एक ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो अभी 2 मार्च को कालिदास में प्रोग्राम हुआ, अखिल भारतीय पत्रकार संघ, ज्या प्रोग्रामसाठी देवेंद्र फडणवीस, भुजबळ सर आणि रामदास आठवले इनको इन्व्हाइट किया था। तो उस प्रोग्राम के अंदर समाज रत्न पुरस्कार हा भूषण खैरनार सरांना देण्यात आला। म्हणजे मला तो अवॉर्ड भेटला आणि रिझन मी सांगतो, मुझे वो अवॉर्ड मिला, रीजन ये था, थैंक यू, इन प्रीवियस पैंडेमिक आई tried to add values in a life of more than 5 lakh people free of cost through the source of social media। और ये 5 लाख लोग वो थे जिनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से माइंडसेट दे रहा था मैं इन चीजों से बचने के लिए। एंड यू आर मेडिकल पर्सन मोर देन मी, आप जो भी फिजियोथेरेपी बीएचएम जो भी है, आप मेडिकल साइंस से मुझसे ज्यादा करीब हो, आपको पता है कि एक इंसान की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, लेकिन अगर वहां पे फियर इजेक्ट हो जाए तो सब कुछ फेल होने लग जाता है। राइट, यस और नो? अगर वो अंदर से टेंस्ड हो जाए तो बाकी सारी चीजें डिसेबल हो जाती है। Am I right that way? Yes or no? वो खुद को ही, अब तो ऐसा हो गया कि जिसको सांस लेते हो गलती से कुछ अटका तो लोग मेरे को कोरोना तो नहीं है, और वो कोरोना ना होने का जो डर है शायद बिना कोरोना को भी पैदा कर लेता है। Yes or no? I will give एक डेमो एग्जांपल। मेरी तरह एक ऐसा तिगड़म इंसान था, बाय प्रोफेशन ही वाज साइंटिस्ट। He wanted to prove the quality or the level of human potential, inner system you would say। Great example है, last time I had given, I don't know। उन्होंने क्या किया, उनको प्रूव करना था। वहां पे एक जो हिंदी भी बात करें, चलो एक कैदी जो होते तो उनको पनिशमेंट मिली थी कि उनको फांसी, हैंग ऑन बोलते ना उनको, तो उनको फांसी की शिक्षा मिली थी, जो भी था पनिशमेंट मिला था। तो उन्होंने कोर्ट की परमिशन ली कि आप इनको फांसी देने ही वाले हो, सो वी वांट टू ट्राई सम एक्सपेरिमेंट ऑन यू। और एक्सपेरिमेंट ये है कि हम इनको मारेंगे, लेकिन फांसी की जगह पे एक जेल के अंदर हम उनको बंद करेंगे, हाथ बंद करेंगे, उनका बस वो ब्लैक से कवर करेंगे, और उस रूम के अंदर हम ब्लैक कोबरा को छोड़ देंगे और ब्लैक कोबरा उनको कर लेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये सेम अरेंजमेंट की गई, वहां पे उनको बंद किया गया, उनको लगाया गया और ब्लैक कोबरा को छोड़ा, और बस उस इंसान को जैसे ही कवर किया, बाद में ब्लैक कोबरा को निकाल लिया, और एक छोटी सी सेफ्टी पिन होती है, साड़ी के लिए लगती है वो बॉबी पिन, उस पिन को उसके हाथ को पिंच किया एंड विद इन अ सेकंड ही डाइड ओवर देयर। यू नो दिस मोर देन मी, आपको ये सारी चीजें पता है मेडिकल साइंस से। और जब पीएम हुआ तो इक्विवेलेंट टू पॉइजन ऑफ ब्लैक कोबरा, सेम एक इंग्रेडिएंट उसके बॉडी ने खुद से प्रिपेयर करके वहां पे सीक्रेट कर दिया। दिस इज रियल स्टोरी आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आवर बॉडी हैज दैट पोटेंशियल ऑफ गोइंग इन अ माइनस और गोइंग इन अ प्लस, creating for positive or creating for negative. And the last example I would tell you about myself only. When this amputation went on, 50 stitches थे, 31 अक्टूबर 2012 को एक्सीडेंट हुआ, 1 नवंबर को पहला ऑपरेट हुआ जिसमें कट किया सिर्फ और ओपन रखा था 7 दिनों के लिए, और 7वें दिन उसको क्लोज किया स्टिचिंग के साथ। जब क्लोज किया तो डॉक्टर को पापा ने पूछा 7 नवंबर को कि व्हाट डू यू थिंक how many days he will be taking to recover physically, mentally? So he told that physically, mentally, overall he will be taking at least 8 months, as per the experience of that MD personality. MD doctor amputated more than 50 people like me. उन्होंने इतने लोगों का amputation किया था। उन्होंने बोला 8 मंथ कम से कम लगेंगे। तो मुझे बताया गया था कि आपको रेस्ट करना है वगैरह वगैरह जो भी। But I have challenged my system and I have confidence on my teaching। कहते हैं ना, आप खुद को क्या सिखाते हो वो बहुत मैटर करता है। ओन एक्सपेरिमेंट मैंने डिसाइड किया 7 नवंबर को कि नो, आई नो द ओनली थिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें मुझे पता थी, और गॉड भी। आई एम कंप्लीटली, मराठीत बोललो तर मी एक आस्तिक व्यक्ती आहे, देवाचं प्रेझेंस मानणारा व्यक्ती आहे। गॉड इज देयर, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दिस। तो मैंने इन सारी चीजों को पकड़ के मैंने टारगेट लिया, बिफोर 21 डेज आई विल बी लिविंग दिस हॉस्पिटल एंड आई विल बी बैक टू माई वर्क। ये मैंने टारगेट लिया। उन्होंने बोला 8 महीने लगेंगे, स्टिचेस थे, लेकिन मैंने बोला 7 नवंबर को, एंड ऑन 28 नवंबर माय एक्सीडेंट, एम्पुटेशन, एवरीथिंग हैपन इन मालेगांव। मैं वहीं पे एडमिट था। इवन 21 डेज तो एडमिट ही था, मुझे डिस्चार्ज ही 24-23 तारीख को मिला था, गेटिंग इट। बट स्टिल ऑन 28 नवंबर पुणे में मैं होटल डेक्कन पार्क के अंदर 200 लोगों को एक पैर के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा था। एप्लॉज हो सकती है सर? हो सकती है। This is all about challenging yourself and that is the power of your human potential। कहते हैं कि स्ट्रेस में क्या करना है,
ये बताने के साथ साथ मैंने आपको आपकी पावर बता दी। वो स्ट्रेस आपके लिए, वो अमीबा होता है ना, अमीबा माइन्यूट, उससे भी छोटी चीज आपके लिए स्ट्रेस है, क्योंकि यू हैव दैट पोटेंशियल। इफ आई कैन डू देन व्हाई यू कांट? I'm not so much topper or not so much extraordinary, magical person, nothing like that. I'm a normal person. But if I can do, then is it possible for you? Yes or no? नहीं सुना, yes or no? Yes. So it was all. Now I am done with my talk. But for last 10 minutes, now this time I have added one 5-minute or 10-minute session. If you want to ask, you can ask me some questions because it is initial for student. Q&A should be there. क्योंकि क्या होता है, कंटिन्यूस मैं बात कर रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो। इससे अच्छा आपके कुछ क्वेश्चन हो, दैट कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रेस आल्सो, दैट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग व्हिच इज, जितना भी मैंने आपको बताया। चलो अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये आपको कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी की जबरदस्त? नहीं सुना मैंने, अच्छी, बहुत अच्छी की जबरदस्त? ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल थी, यस और नो? इवन इफ यू नो वॉट एवर इनपुट आई हैव एडेड इन योर लाइफ, अगर आप इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे खुद को रियलाइज, रिमाइंड करवाते हो, तो भी एक आपके लिए एक अच्छा बैकअप बन सकता है। Am I right, yes or no? In every cases. चलो अभी एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। यू नो क्या मतलब ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं कि इंसान की धन रेशा, ये रेशा, वो रेशा। चलो मैं मानता भी हूँ, जब शाहरुख खान मुंबई के अंदर आए थे तो उनका हाथ उन्होंने दिखाया था। यू नो शाहरुख खान का किरण, ठीक है? तो शाहरुख खान ने हाथ जब दिखाया था तो ज्योतिष शास्त्र वाज लाइक ही डोंट हैव दैट धन रेशा, ज्याच्यामुळे आयुष्यात पैसा येतो, यश रेशा ज्याच्यामुळे सक्सेस येते। ही वाज नॉट हैविंग, एंड एक्चुअली आई एक्सेप्टेड, एस्ट्रोलॉजी इज देयर, लेकिन नहीं था हाथ पे, तो उनको बताया था नहीं था, लेकिन स्टिल ही ट्रस्टेड ऑन हिज थंब, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस थंब, एंड ही टुक एफर्ट्स इन द डायरेक्शन। और जब उन्होंने 30 साल के बाद किंग ऑफ बॉलीवुड बनने के बाद अपना हाथ देखा, सर ये वो रेशा है जो बचपन के 6 साल में आ जाती है, बट शाहरुख खान वाज द एक्सेप्शन, उसको वो धन रेशा बाद में आई थी, अपनी उम्र के 25 साल के बाद। एंड द रीजन वाज हिज ओन एफर्ट, हिज माइंडसेट, हिज डिवोशन, हिज कन्विक्शन। दिस टाइप ऑफ स्टडी आई एम डिलीवरिंग। और आपको पता है ये सारे एग्जांपल ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे एक्सीडेंट के पहले ही मुझे बता दे। तो बताओ अगर ये सब कुछ माइंड में इतना कुछ भरा रहेगा तो एक्सीडेंट का कुछ बैड इफेक्ट होगा, यस और नो? बट ऑब्वियसली नो, we were part of such an atmosphere. Every day we used to tell such an example and story to the people. और आपको पता है जब आप कोई डिसीजन लेते हो ना, उस वक्त कुछ पुश बोलते हैं, पंच होता है। पंच लाइन अगर सही मिल गई तो आप इस साइड में जाते हो, नहीं मिली तो आप इस साइड में जाते हो। तो ऐसे लाइन का बहुत मैटर करता है। And even if you will be doing that, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इंसान के बॉडी में, बताया आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। महाराष्ट्र के जैसे 4 स्टेट को 7 दिन लगातार लाइट दे सकते हो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी इंसान की बॉडी जनरेट कर सकती है किलोवाट में। आई हैव स्लाइड आल्सो। 4 स्टेट लाइक महाराष्ट्र फॉर 7 कंटिन्यूअस डेज, दैट इज पावर वी पीपल आर हैविंग। हम कहते हैं ना कि नहीं मैं दिन भर कॉलेज जाके बैग फेंक दी, ये फेंक दिया, घर के काम करते नहीं, मम्मी को हेल्प करते नहीं, नथिंग इज लाइक, क्या बोलते हैं, स्टैमिना, स्टैमिना बोलते हैं ना, थकली में आता, एग्जॉस्टेड। तो ये मेंटली फिजिकल नहीं। और एक है, उसका भी पूरा है मेरे पास, जीबी के अंदर, जीबी के बाद टीबी होता है, ऐसे अलग अलग कैपेसिटी होते हैं। हमारे ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है कि एचडी क्वालिटी की जो वीडियो है वो 300 साल प्ले करने के लिए जितना डेटा लगता है उतना एक ब्रेन के अंदर। अब मेरे कुछ स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर कल मेरे को डाउन फील हो रहा था, फिर मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला याद किया, नाउ आई एम फीलिंग गुड। सर मेरे को मेमोरी पे डाउट हो रहा था लेकिन आपको 300 साल की वीडियो वाला याद किया, नाउ आई एम डूइंग गुड। You can memorize the thing. Okay? If you have question, then you can ask. Before that, अगर आपको बात अच्छी लगी तो सभी लोग एक जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। Thank you. Thank you so much. Sir, you want to show some photos that was there? Yes, sir. Only not with the PPT, sir. Okay, okay. Okay. Photos है. नहीं मैडम, thank you. It's more than okay, I think. Right? Of not quantity, but it was of quality. These 30 people, 40, 50 people, even if it is for everyone. And now whatever transformation coaching I am telling you, by age, I should not declare it on a stage, by age I am just a 28 person. My age is just 28, but my clients are of 45, 55, some of them are 65 also, because now my expertise in transformation coaching. I have done 3 major transformation in my life. First, I already explained you about recovering from that particular physical medical damage. Second was about trekking Ramses Fort. Actually, that was such a phase of my life when I was already earning 5 figure thing in life.
But that time I was like, no, I am feeling so much over satisfied. Everything was going good. So that time I took a decision that I will be trekking that entire fort. But something different should be there. You know, normal person can't trek. 2-leg person can't trek. But I decided to trek entire fort without stick and without prosthetic leg. It means I trek entire fort just by jumping like a kangaroo. And the video is on YouTube and 20 youth were with me and I trekked that entire 9 to 10, I think ma'am was also there with me. So 9 to 10 kilometer distance I trekked just by jumping on a leg. And the Ramses fort is not like a Siagar. Siagar is with proper stairs. Ramses is completely otherwise a rasta. आता याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात मला माहित नाही. Getting my point. So it was so raw by path, so that still I did that, and the same story now I am delivering in the corporate for about 10 personality traits which I learned from this particular incidence of trekking, and that personality trait I am delivering to the manager and supervisor level people in corporate. I just recently gave the my training session for MIDC, Nagar MIDC, Bhima Koregaon, Shikrapur near Pune. The program was of 5 hours and the topic was completely emotional intelligence. You know, today we discussed that also comes under the emotional intelligence. You know, IQ, intelligent question, but more than IQ, what matters? Your EQ, emotional question. Okay? And thank you so much. Finally, I am signing out. If you have any question, you can ask to ma'am, and you can connect with me on my social media also. My YouTube channel is also there, my website is there. And then also, if you want any help, you can have my number from ma'am also. Okay? Thank you so much. Bye. Mike. Yes. Thank you so much, sir. Your motivated words definitely inspired every one of us. Definitely, we all use 3F to manage our stress. Again, feeling gratitude and not expressing it, like a wrapping a present and not giving it. For that, I just invite Dr. Tejasri Thakre to give vote of thanks. So what we have learned today, the stop focusing on how stressed you are and remember how blessed you are. Okay, I am very humble and honored to be one making the closing remarks and giving the vote of thanks in such a distinguished and intellectual stimulating gathering. So on behalf of Motiwala Homeopathic Medical College and Physiotherapy College, from the depth of our hearts, we thank our today's speaker, Mr. Bhushan Khairnar, for your motivational words, and we are all inspired by your great words. Thank you, sir. Thank you. I thank our well-wisher principal, Dr. Motiwala sir, for his support, vision for extramural activities in our institute. I thank Dr. Sahar Motiwala Singh and all the heads of various departments and the faculty for their valuable support and presence. I owe special gratitude to the coordinator, Dr. Ruta Patharkar, and the non-teaching staff who have worked hard to ensure that this program becomes harmonious. Last but not the least, I thank you all, audience, PG scholars and the UG students for attending this seminar. Thank you. Thank you.